So in the last class, we were basically doing this complement, right? So आज हमने जो start करना है, that is your this slide from this slide, right? So this is your, let me give it a, yeah. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay. So today we will do first subtraction of unsigned numbers with r's complement. What is the meaning of unsigned numbers? जिसके साथ कोई sign नहीं लगा हुआ, right? अब वो कैसे करेंगे? So if suppose you are given any two n-bit numbers which are unsigned, right? Unsigned का मतलब कैसे, मान लो आपको पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, right? It can be anything, right? So अगर आपको कोई भी दो unsigned numbers given है, suppose a and b, and you have to solve a minus b. So we will call a, जिससे आपने माइनस करना है उसको बोलेंगे हम minuend, and b को क्या बोलेंगे हम subtrahend, right? So we have to do minuend minus subtrahend, right? तो कैसे करना है देखो ध्यान से. सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आपका minuend है जिसमें से आपने माइनस करना है a, right? उसका आप क्या लोगे, उसको ऐड करोगे किसमें, टू द r's complement of b. तो इट मींस जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, we have to take the r's complement. If suppose it is a binary, then it take its 2's complement. If it is decimal, take its 10's complement. If it is octal, take its 8's complement. Hexadecimal, take its 16's complement, right? So depending upon the which base you are dealing with, take that respective base complement of the subtrahend. Subtrahend का मतलब क्या है, जिसको हमने माइनस करना है, right? Then we have to add that subtrahend to the original number a. तो a जो हमारा minuend है, minuend के अंदर subtrahend का 2's complement या 10r's complement को हमने ऐड करना है, right? Like this. And when we perform the addition, so there are two cases. First thing is that maybe your minuend is greater than subtrahend, or minuend is less than subtrahend, or in other case it may be equal also, right? So for this next step, if your minuend is greater than equal to subtrahend, then the end carry produced by this result will have to be discarded. What it means, wherever we are performing the r's complement of subtrahend and adding it to the minuend, and if there generates a carry, it means that my minuend is greater than the subtrahend. In that case, just discard that carry, and rest whatever you are getting, that will be your answer. In case my minuend is lesser than subtrahend, this is suppose मेरा number है -5 minus 10, right? तो 5 छोटा है, 10 बड़ा है, right? So minuend is greater than, sorry, minuend is lesser than subtrahend, right? So in that case, what we have to do is that do the same thing, but इसमें क्या होगा? But in that case, there will not be any carry generation, right? अब carry generation नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? We have to take the r's complement of our result. Means जो हमने प्रोसेस तो सेम ही है कि जो हमारा subtrahend है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, we have to take its r's complement and then add into the minuend. Now, if minuend is lesser than the subtrahend, then there will not be any carry generation, right? So if there is no carry, it means it results that the number is negative, result is negative, and to note its magnitude, we need to take the again r's complement of my result. For example, here it's shown as number is 36. A is 36, suppose B is 66. And we are going to perform 36 minus 66. So in that case, we have to take the first r's complement of 66, add it to the 36, and let me show you here. Add it to 36, and then we got what? We got value approximately 130. Right? So now this 130 is not the answer. This basically indicates that there is no carry generation, so there is a negative sign. Right? Now, what is the magnitude of this? So for that, we have to take the 10's complement of 130. So वो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से कि ये जो आपका पास सम आया 130 का 10's complement कैसे लेंगे बताओ? First take its 9's complement, means 999 minus 130. Right? We will do it close to sum. Then whatever you got plus 1. So that will be the magnitude of your this, subtraction.
Now if suppose we're having two numbers which do not have equal number of digits, suppose आपका number है कोई 534 minus 23, तो फर्स्ट नंबर आपका जो minuend है वो 3 डिजिट था और subtrahend 2 डिजिट है, or vice versa also, right? So what we want to say is that whenever we are dealing with the subtraction, always make sure that the number of digits of minuend and subtrahend should be similar. In case there is some discrepancy, means एक का 4 है, एक का 5 है, एक का 3 है, एक का 2 है, कुछ भी ऐसा है, so append respective zeros to that before computing the r's complement. So if two numbers do not have equal number of digits, then precede the shorter number with number of zeros to make the number of bits equal. Right? Now let's try some. For example, I need to compute this subtraction. Let me open the whiteboard. Yeah. Suppose I need to compute 82357 minus 5670. सर हाँ जी. सर आपका व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है सर. Okay, wait. अब visible है? Yes sir. Okay. So suppose we need to perform this using tens complement. So यहाँ पर हमारा minuend कौन सा हुआ? A will be 82357, right? And subtrahend will be 5670. Now we can first you have to see that are the number of digits same? The answer is no. है ना? तो यहाँ पर B में क्या है? Only we are having 4 digits, while in the A we are having 5 digits. So we have to append 1 0 in front of this. First thing, right? After making all the digits equal, number of digits equal, then we have to take what? We have to take the tens complement of B. So for that, take nines complement first. How to take nines complement? Take 5 nines and subtract this number. So what we will get? 9, 2, 3, 4, 9. This is what? This is the nines complement. Then do plus 1. 0, 1, 3, 3, 4, 9. So this is the tens complement of my subtrahend B. Now take this tens complement and add into A. So what we will get? A is my 82357 and tens complement of B is equal to 94330. Add them. 7, 8, 6, 6, 17, 7 and 1 carry. So when carry is generated, just neglect this carry. And if carry is generated, it indicates that my minuend is greater than or equal to subtrahend. It means my number is positive. And what is my answer? My answer is 76687. And you can simply solve it also. If you generally do it the decimal subtraction, you can verify. We simply subtract this 7, then 8, then 6, 6, 7. So this is equal to this. So they are correct. Is this thing clear? सर हाँ. सर ये minuend बड़ा कैसे हो गया subtrahend से? minuend कौन सा है? ये वाला. ये subtrahend है. अच्छा, तो जब हमने ये परफॉर्म किया, ठीक है सर, ठीक है ना? और कोई डाउट किसी को? सर इससे डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, इसको इतना लंबा क्यों करा हमने? बिल्कुल सही बोला आपने. ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से करते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं यार, क्यों कर रहे हैं इसको इतना काम, है ना? तो ये हम किससे करवा रहे हैं? कंप्यूटर से करवा रहे हैं. और कंप्यूटर में जब ऐड करेंगे तो हमने उसको नंबर बाइनरी भेजेंगे या उसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में भेजेंगे, तो देयर वी नीड टू परफॉर्म द एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हियर वी आर यूजिंग अ टेंस कॉम्प्लीमेंट.
तो जनरली हम क्या Okay. करते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट नोटेशंस. कॉम्प्लीमेंट करके उसको ऐड कर दिए, देन व्हाटएवर द प्रोसीजर, इफ देयर इज कैरी दैट द कैरी, इफ देयर इज नो कैरी इट मींस द नंबर इज नेगेटिव एंड वी टेक द टेंस कॉम्प्लीमेंट अगेन. सर अगर ऐसा हो जाए लाइक अगर कैरी ना आए और हाँ, अभी लेते हैं मिनिमम, वो वो एग्जांपल वाला लेना, बता दो. वो एग्जांपल लेना है इसके बाद. देखो नाउ लेट्स टेक, इसका उल्टा ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स टेक नंबर 5670 minus 82357. ठीक है, हमने इसको उल्टा कर दिया. अब देखते हैं अब क्या करेंगे प्रोसेस. इसमें मिनिमम क्या हो गया आपका 5670, सबट्रेंड क्या हो गया आपके पास 82357, राइट. तो पहले तो यहाँ पर 0 पॉइंट कर देंगे, इक्वल हो गए. अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, इसमें किसका लेंगे हम, टू टेंस कॉम्प्लीमेंट सबट्रेंड का अगेन, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट बताओ. पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे 99999 minus 82357. If you subtract it, you will get 2, 4, 6, 7 and 1. Then perform plus 1. 3, 4, 6, 7, 1. So this is what the tens complement of B. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको A में ऐड करना है. A मेरे पास क्या था 05670 and tens complement of B is equal to 17643. So add them. 3, 11, 1, 3, 1, 3, 1, 2. Is there any carry generation? No sir. No carry. It means my result is in negative. And what is the magnitude of my result? So we have to take this number and take its tens complement to note down the magnitude. तो कैसे आएगा, take 59 against because there are 5 digits, 23313 minus करो 6 8 6 6 7 and do plus 1 7 8 6 6 7. So my answer is now what, minus 76687. So यहां पर क्या था, कैरी नहीं आया, इसका मतलब क्या है, जो मेरा मिनुएंड है इज लेसर देन सबट्रेंड. इज दिस थिंग क्लियर? मैंने दोनों देख के बता दिया आपको, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ बोलो. सर ये हमने जब नो कैरी आएगा तो हमने वापस से जो हमारा आंसर आया होगा उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है. एग्जैक्टली. सर इसका फायदा क्या होगा लाइक? इसका फायदा ये है ना कि जो ये नंबर आया है ना बच्चे, ये नंबर आपका आंसर नहीं हुआ ना, दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड. नो कैरी इंडिकेट्स दैट दिस नंबर इज नेगेटिव, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो आपको, आपने दो नंबर को ऐड किया. लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज करो आपने ये नंबर ले लेते हैं, सपोज करो 5 minus 10 किया, तो आप बोलोगे सर आंसर नेगेटिव में आएगा, पक्का श्योर है ना. बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सो विल से इट्स 5. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नो कैरी तो आ गया, पर दिस इज नॉट द आंसर ना. For getting this answer using this r's complement or tens complement, we have to take the tens complement of this particular number. Okay sir. And this is true for all the r's complement notation. ये तो मैं tens में किया ना, अगर 2s लोगे तब भी ये सेम प्रोसीजर करना है, आप 8s लोगे तब भी यही करना है, 16 लोगे तब भी यही करना है. इतना पोर्शन क्लियर हो गया? Yes sir. Now let's again go back to the PPT. Okay, is it visible to all PPT? Yes sir. हाँ, तो देखो जो भी हमने किया वो चीजें सेम चीज यहाँ पर हो रही है. पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, राइट. ये है टेंस कॉम्प्लीमेंट, बी आ गया, हमने इसको ऐड कर दिया, एंड कैरी आ गया, जनरेट हो गया हमारे पास, राइट. डिस्कार्ड द कैरी एंड दिस इज द आंसर. दूसरा केस क्या लिया, उसका उल्टा कर दिया हमने, वही सेम चीज जो भी किया हमने, राइट. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट. No end carry, so take tens complement of this number and prefix minus sign to get the final result. तो जब अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो, कभी कुछ भी करते हो, तो मेक श्योर टू मेंशन दिस
कि माइनस में आंसर आ रहा है, कि ये नहीं कि सिंपल टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया और आपने आंसर दिया, ये आंसर आ गया मेरा। नो, यू हैव टू अपेंड अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट, राइट। नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, now example of subtraction of unsigned binary numbers using complement. For example, you're given this number, p is this number and q is this. Now can you perform using 2's complement? करो ट्राई, शाबाश। ये भी हमने किया था, कौन सा? We have done unsigned decimal numbers. ये क्या है? unsigned binary numbers. प्रोसीजर सेम है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर, वहां पर बेस 10 था, यहाँ पर बेस 2 हो गया। कर सकते हो? बोलो नहीं तो मैं करूं। करते हैं सर, ट्राई करते हैं। सर एक मिनट ट्राई करते हैं। हाँ करो करो, एक मिनट ट्राई करो। दिमाग में वही कंसेप्ट रखो कि जो मेरा सब्ट्रैंड है सिर्फ उसका मुझे आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये बाइनरी है तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना उसका मुझे, और उसको उसमें ऐड कर दो मिनुएंड में। कैरी आ रहा है तो डिस्कार्ड कर दो, नंबर पॉजिटिव है वही आपका आंसर है। अगर कैरी नहीं आ रहा तो नंबर नेगेटिव में आपने उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फिर से लेना, आंसर का टू कहता है मैग्नीट्यूड। फिर डिजिटल में बहुत सिंपल है, डिजिटल सिर्फ दिमाग में ये रखना है आपने कि आपका लॉजिक क्या है। लॉजिक सही है तो कुछ नहीं गलती नहीं हो सकता कभी, चाहे वो 10 कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 2 कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे आपका 8 कॉम्प्लीमेंट हो, 16 कॉम्प्लीमेंट हो। टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, क्यों का? यस सर। कितना आया बताओ। सर टूस कॉम्प्लीमेंट ना सर, 0 1 1 1 0 1। बस 4 डिजिट आए सर नो, 0 फिर हाँ। 4 बार 1 फिर फिर 0 फिर 1। बिल्कुल ठीक है। अब इसको ऐड करो उसके अंदर, देखो कैरी आता है। यस सर आएगा। तो नंबर पॉजिटिव में है ना, यस सर। तो दैट रिजल्ट इज योर आंसर। नाउ लेट मी शो सर यू। एक बारी ऐड का बता दो, ऐड का कैसे करेंगे? देखो ये आपका मिनिमम एंड पी है, टू कॉम्प्लीमेंट क्यू का लिए सम आपका ये आ गया, ये है ना आपका 1 कैरी आ रहा होगा। यस सर। ऐड कैसे करते हैं पता है ना आपको? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is sum 0 carry 1, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको अगर आप मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने वेरीफाई करना है मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो क्या करो शॉर्टकट, इस बाइनरी का इक्विवेलेंट क्या निकालो? डेसिमल नंबर। तो ये नंबर किससे इक्विवेलेंट है देखो जरा, दिस नंबर इज 7 डिजिट ना, सो 2 की पावर 6 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? सर हाँ बोलो। सर ये जो हमने सर वो पीपीटी करना सर, एक सेकंड। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो हमने वहां पर 101 लिखा हुआ और नीचे जो 011 लिखा है, सर जब हमने उसको प्लस किया 1 और 1 को, सर वहां पर 0 नहीं आना चाहिए था? आप बताओ। यहाँ देखो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 with 1 कैरी, 1 + 1 0 with 1 कैरी, तो 3 1 हो गया ना यहाँ पर, ठीक है फिर 1 आएगा। ओके सर, ठीक है, राइट। ओके। हमेशा जैसे हम कहते हैं बच्चों से कहते हैं कि राइट से सम करना शुरू करो, तो वही प्रोसीजर इसमें भी है, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको चेक करने के लिए, तो नंबर क्या है? 1 0 1 0 1 0 0। लेट मी ओपन दैट, 1 0 1 0 1 0 0। और दूसरा नंबर क्या था? 1 4 zeros with 1 1, 1 4 zeros with, सॉरी 4 0 with 1 1। तो ये कितना होगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2। दिस इज 2 की पावर 6, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो ये पहला नंबर अगर इसका डेसिमल निकालो कितना आएगा? 64 +
16 80 प्लस 4 84 और ये कितना आएगा 64 प्लस 2 67 67 माइनस करो कितना आएगा 717 आना चाहिए। अब आंसर मेरा क्या है देखो जरा 001007 2 की पावर 4 प्लस 1 आ गया 17। यस सर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आई एनकरेज यू शुड चेक योर आंसर आल्सो, तो आपको गारंटी हो जाएगी मेरे 5 नंबर क्वेश्चन अगर ये आया था मान लो या 4 नंबर का आया था 3 नंबर का भी आया था वो ठीक है क्वेश्चन मेरा। गॉट इट? यस नाउ Yes, sir. अब इसका उल्टा करते हैं q माइनस पी। तो q माइनस पी करेंगे तो क्या करेंगे इसमें p का हम टूस कॉम्प्लीमेंट उस कॉम्प्लीमेंट नहीं Who's complementary? बिल्कुल, तो वो करो जरा। तो q ये है हमारे पास p ये है, ऐड कर दो उसको। अब देखो इसमें कैरी नहीं आएगा है ना, तो कैरी नहीं आया इसका मतलब क्या है नंबर नेगेटिव है Negative side. एंड यू हैव टू टेक द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर आंसर। तो वो कितना आ जाएगा 001 0001 सर टूस हाँ। कंप्लीमेंट कब लेना है? जब कैरी नहीं आएगा। ओके ये So, like, जब देखो आपको मैं जो तरीका समझा रहा हूं ये तरीका किसके लिए, अगर मेरा आर्स कॉम्प्लीमेंट से काम कर रहा हूं मैं। अभी मैं इसके बाद आपको r माइनस 1 पढ़ाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा कुछ, तो अभी दिमाग में ये रखो अगर तो मैं आर्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं नंबर 1 कैरी आ रहा है तो कुछ नहीं करना मुझे, आंसर मेरा वही है नंबर पॉजिटिव में है। नंबर 2 अगर कैरी आ रहा है सॉरी नहीं आ रहा कैरी तो उस केस में आपने आंसर को टूस कॉम्प्लीमेंट फिर से लेना है और वो नंबर आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर? सर हाँ, मतलब बोलो। अगर कैरी आ रहा है तो टूस कंप्लीमेंट लेना है? नहीं लेना। ओके देखो ना ऊपर सी टूस कॉम्प्लीमेंट तब लेना है जब हमारा नंबर नेगेटिव में आ रहा है आंसर। वो नेगेटिव में कब आएगा जब आपका मिन्यूएंड स्मॉलर है देन योर सबट्रेंड, है ना। Okay, sir. 5 माइनस 10 बताया था मैंने आपको। तो अगर नंबर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तब नेगेटिव आंसर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा आंसर का। पॉजिटिव में तो कुछ करना ही नहीं हमने, पॉजिटिव में तो नंबर पॉजिटिव में ही है हमारा, वही आंसर है। ओके अब देखो जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सबट्रैक्शन यूजिंग r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि पहले हमने किया था यूजिंग r कॉम्प्लीमेंट। और हाँ सबट्रेंड है ये प्रीडिफाइंड होता है। दोबारा बोलो। ये जो मिनुएंड और सबस्ट्रेंड है ये प्रीडिफाइंड है कि ये मिनुएंड होगा और ये सबस्ट्रेंड होगा। सी मिन्यूएंड कौन सा है जो पॉजिटिव है, बड़ा बड़ा छोटा नहीं, जो पॉजिटिव नंबर है। जो नेगेटिव क्या लगेगा वो सबट्रेंड होगा, जिसको आपने माइनस करना ना वो आपका बाय डिफॉल्ट सबट्रेंड होगा। ओके सर ओके बाय ठीक है, डिफॉल्ट जो है ना। हाँ जो प्लस वाला है वो बाय डिफॉल्ट आपका मिन्यूएंड है। ठीक है सर। ठीक है, तो अब जो हम काम पहले किया था वही काम फिर से करेंगे, लेकिन अब करेंगे यूज हम दूसरा मेथड, उसका नाम क्या है r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने कौन सा यूज किया था आर्स कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब हम क्या करें r माइनस 1 जिसमें हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। अब इसको देखो कैसे होता है। Since r minus 1's complement is 1 less than r complement, है ना? So resulting of the adding the minuend to the complement of the subtrahend is 1 less than the correct difference when the AND carry occurs. What it means? Let me show you. सर इसमें Adding 1 the ऐड करना पड़ेगा बाद में। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है अगर कैरी आएगा तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना, कैरी को आपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, adding the AND carry to the sum is referred to as an AND around carry. कि जब आपने r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट से रिजल्ट किया, जैसे मान लो मैंने कहा था a माइनस बी, तो b का आपने r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला, a में ऐड कर दिया। अगर तो कैरी आता है तो उस कैरी को छोड़ना नहीं है, उस कैरी को आपने ऐड करना है आपके सम में। इसको बोलते हैं हम एंड अराउंड कैरी, राइट। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज यू गिवन दिस सेम नंबर्स जो हमने पहले लिए थे, है ना। अब आपने इसको यूजिंग करना है विद बाय वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे? लेट मी टेक द नंबर, या दीस आर टू नंबर्स ना। सो अब 1 0 1 0 1
100 को माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 1 with 4 zeros 1. तो दिस इज माई minuend, this is my subtrahend, or this is my B or A, right? So we have to take ones. अब मैंने करना किसके, using ones complement. एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कभी आता है और वहां पर लिखा हुआ है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, तो आपको उसी कॉम्प्लीमेंट से करनी पड़ेगी. आंसर तो दोनों में सेम ही आता है, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट है दोनों का. तो अगर आपको लिखा हुआ है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और आपने टूज कॉम्प्लीमेंट से किया तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको उसके. सो यू हैव टू यूज दैट मेथड ओनली जो आपको दिया हुआ है, राइट? तो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है आपने, आप पहले क्या करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो किसका, सबट्रेंड का, बी का. तो वो क्या आएगा, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, है ना? तो 0 1 1 1 1 0 0, राइट? अब ये जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, इस वंस कॉम्प्लीमेंट को किस में ऐड करोगे आप, ए में. तो ए हमारे पास क्या था, लेट मी राइट 1 0 1 0 1 0 0, दोनों को ऐड कर दो. 0 0 0 with 1 carry, 0 with 1 carry, 1 with 1 carry, 0 with 1 carry, 0 with 1 carry. अब जो ये कैरी आया है ना आपका, you have to take this carry and add it here. 1 0 0 0 1 0 0. So this is my answer. तो वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने कैरी को छोड़ना नहीं है. कैरी आ गया तो नंबर पॉजिटिव में ही है, लेकिन उस कैरी को आपने आंसर के अंदर ऐड करना है. Am I clear? Yes, sir. Okay. Now let me go back to the PPT. शीशम आ गया. So we have to simply. सर हाँ बोलो. सर एक बार एडिशन बता दो. एडिशन किस चीज की वजह, पीछे वाला क्वेश्चन दिखा अभी. यस सर. ये वाली देखो, हमने क्या किया, इसको बी का हमने क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट. पहले जो 0 था 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, फिर हमने उसको ए में ऐड कर दिया. तो ए में ऐड करके हमारे पास कैरी आ गया. अब इस कैरी को मैंने एंड राउंड कैरी की तरह ट्रीट किया, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया सम के अंदर, एंड सिंपली आई गॉट दिस आंसर. क्लियर? यस सर. सो यहाँ पर ऐड कर दिया, देखो. सो दिस इज द आंसर, x minus y is this number. Now take y minus x, करो शाबाश, try it yourself. y minus x में क्या करोगे, x का वंस कॉम्प्लीमेंट लो और y में ऐड कर दो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर कंप्यूटर कौन सा मेथड यूज करता है? कंप्यूटर जनरली टूज कॉम्प्लीमेंट फॉलो करता है. इसमें कैरी आ रहा है. सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है वो वाली. कौन सी वाली, पीपीटी दिख रही है? हाँ पीपीटी दिख रही है. हाँ, मैं दूसरी स्क्रीन दिखाई नहीं मैंने आपको, ये आपको ये करने के लिए. अच्छा ठीक है. हाँ, इसमें x का निकालो आप वंस कॉम्प्लीमेंट और y में ऐड कर दो, फिर देखो क्या ही आ रहा है को नहीं आ रहा. तो नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा. तो देयर इज नो एंड कैरी, तो क्या करेंगे, द नंबर इज नेगेटिव, टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर, सॉरी इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें रहेगा, यहाँ पर लिखे ऐसे. इट इज नेगेटिव वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना है इसका, 0 0 1 0 0 0 1. जैसे उसमें किया था हमने कि अगर तो कोई कैरी नहीं आ रहा तो इसका मतलब नंबर नेगेटिव में है, लेकिन क्योंकि ये r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है तो आपने इसका r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ही लेना है. क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर. अब क्या पॉइंट नोट करना है, देखो, नेगेटिव रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, सिंस दिस इज द टाइप ऑफ
कॉम्प्लीमेंट वी हैव यूज्ड, क्योंकि हमने वंस कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं एडिशन, तो वी हैव टेक वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट से कर रहे होते तो टूस कॉम्प्लीमेंट लेना था हमें उसका आंसर का। The above procedure with and around carry is also applicable to subtracting unsigned decimal numbers with nines complement। तो ये सेम प्रोसीजर हमने किया है एंड अराउंड कैरी का। अगर आप यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसमें भी ये सेम प्रोसीजर है। उसमें अगर कोई कैरी आता है तो कैरी को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, उसमें भी एंड अराउंड कैरी की तरह उसको अंदर ऐड करना है एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। तो अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, टूस कॉम्प्लीमेंट एडिशन और सॉरी टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन और वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, तो क्या फर्क हुआ? इन टूस कॉम्प्लीमेंट अगर आपका कैरी आ रहा है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और नंबर पॉजिटिव में उसका वही आंसर होता है। लेकिन इन वंस कॉम्प्लीमेंट अगर कैरी आ रहा है तो आपका नंबर पॉजिटिव में है, लेकिन उस कैरी को एज ए एंड राउंड कैरी आपने सब में ऐड करना है टू गेट द मैग्नीट्यूड। एंड इफ your minuend is lesser than subtrahend, then for the twos complement we are getting no carry, then we say that the number is negative and take the twos complement of the sum. But using ones complement when we are doing, and if we are not getting any carry, it means that the number is negative and we have to take the ones complement of that sum. Clear हो गया? जिसमें जो सम है वही कॉर्रेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। क्लियर? तो ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे सारी अनसाइंड नंबर्स की, इसमें कोई साइन हमें गिवन ही नहीं है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। Positive integers including 0 can be represented as unsigned numbers. In ordinary arithmetic, minus sign indicates a negative number and plus sign indicates a positive number. Similarly, negative integers in binary representation also require some notation for the negative values. तो जो बाइनरी नंबर्स में हम कैसे बताएं कि ये नंबर नेगेटिव में है, नंबर पॉजिटिव में है, राइट? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, we use a sign bit, मींस जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स हैं उसके साथ हम एक साइन बिट रिजर्व रखते हैं। वो कौन सी? हमारी सबसे लेफ्ट वाली। तो इसमें आपको एक चीज बताता हूं मैं, जैसे मान लो हमारा ये नंबर था, so this is referred as MSB, this is referred as LSB. MSB stands for most significant bit, least significant bit. इसका मतलब क्या होता है least significant, most significant? Anybody? Significant का मतलब क्या हुआ? जरूरी, जरूरी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इन बाइनरी वी नो दैट, और यानी नंबर सिस्टम वी नो दैट कि जो राइट मोस्ट नंबर है, जैसे अगर डेसिमल की बात करते हैं हम कहते हैं ये 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है ना? तो अगर ये वाला वन मिस हो गया तो सब रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या? इट इज हैविंग द मैक्सिमम वेटेज। So likewise in binary also it is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6. It means सबसे ज्यादा significant जो bit है वो तो हमारा लेफ्ट मोस्ट हुआ ना, जिसकी सबसे ज्यादा bit है। That's why it's referred to as the most significant bit. Likewise the right most bit is always taken as LSB because उसका weight हमेशा r raised to 0 means 1 ही होगा, राइट? तो आपको दिमाग रखना कि हर एक बाइनरी नंबर में एक एमएसबी होता है और एक एलएसबी होता है। इज दिस नोशन क्लियर? हाँ जी बोलो सर। मेरा ना एक्चुअली नेट चला गया था, तो आप सर ये एमएसबी और एलएसबी को एक बार जल्दी से हाँ देखो एमएसबी क्या है बच्चे, मैं बता रहा था कि मान लो आपको कोई बाइनरी नंबर गिवन है, राइट? अब उस बाइनरी नंबर में क्या होता है, हर एक डिजिट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर जो राइट मोस्ट नंबर है उसका वेटेज कितना होता है? 2 to 0। यस सर। नेक्स्ट का 2 to 1, 2, 3 बढ़ते, तो जैसे हम लेफ्ट की तरफ अप्रोच करते हैं हर एक बिट का वेट बढ़ता जाता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट, उसको हम क्या बोलते हैं? एमएसबी, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उस बिट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इस नंबर के अंदर, क्योंकि उसका वेट सबसे ज्यादा है। राइट वाइज जो राइट मोस्ट है, ये राइट मोस्ट बिट है हमारे पास, तो राइट मोस्ट बिट को क्या बोलते हैं? LSB, that is least significant bit, उसका वेट सबसे मिनिमल है, कम है। ओके सर, समझ गया। हाँ, तो अब हमने ये देखना है, जब हम कह रहे थे कि जब हम बात करते हैं साइंड नंबर्स की, तो डेसिमल तो हमें पता है कि
5 लिख दिया मैंने, -10 लिख दिया, लेकिन बाइनरी में -0101 नहीं लिखते हम जनरली, हम ये माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी तरीके से। तो उसके लिए क्या करते हैं, वी यूज्ड और वी रिजर्व्ड अ साइन बिट। वो क्या होता है, लेट मी शो यू इन द पीपीटी। सो हियर अ साइन बिट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट द साइन। अब अगर लेफ्ट मोस्ट बिट आपका 0 है, इसका मतलब क्या है, नंबर पॉजिटिव है। और अगर लेफ्ट मोस्ट बिट आपका 1 है, इसका मतलब क्या है, नंबर नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, if I ask you that this is your number, right? If this is my signed binary number, तो आपको गिवन होगा कि जो बाइनरी नंबर आपको गिवन है, क्या ये साइंड है, कौन साइंड है? अगर तो ये साइंड है तो बाय डिफॉल्ट जो आपका लेफ्ट मोस्ट बिट है, दिस इज रिजर्व्ड फॉर साइन। तो अगर यहाँ पर साइन 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, नंबर क्या है मेरा, ये नेगेटिव में है। अब क्वेश्चन है कि नंबर तो नेगेटिव में आ गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो उसके लिए आपको बाकी बिट्स देखने हैं। फॉरगेट अबाउट दिस बिट इज ओनली रिजर्व्ड फॉर टेलिंग दैट कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड इफ यू वर्क ऑन दिस एंटायर अदर 6 बिट्स, तो यू विल गेट दिस इज 2 raised to power 2, 2 raised to power 4, तो दिस इज -20। सर ये वाला वापस बताना। लो फिर से देखो, कोई नंबर बोलो आप अपनी चॉइस का, बोलो। सर 11001 11001, ठीक है। 1 If I say this number is signed binary, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो तो मेरे को क्या बता रही है कि साइन क्या है मेरा इसका, और बाकी बिट्स क्या बता रही है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब साइन अगर मेरे पास 1 आ गया, इसका मतलब नंबर नेगेटिव में है। अगर साइन आता है 0, इसका मतलब क्या है, नंबर पॉजिटिव में। अब नंबर नेगेटिव में आ गया ये वाला नंबर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसके लिए मुझे 1001 देखने पड़ेंगे। तो ये कितना है, 2 raised to power 0, ये कितना है मेरे पास, 2 raised to power 2 और 3, राइट। तो कितना होगा ये, 8 + 1 9। So 11001, if it is a signed binary number, it is equal to -9. But if suppose I write 11001 as unsigned binary, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ मुझे। सर वो तो 9 होगा ना? नहीं, ये वो अगला रह गया सर। So 25. 25 होगा पॉजिटिव। यस, Hmm. पॉजिटिव नहीं बोलोगे उसको आप। 25. अनसाइंड का मतलब पॉजिटिव नहीं है। डेसिमल में होता है ना कि हम लिखते हैं कि +25, तो +25 लिखे 25 लिखे, दोनों एक ही बात होती है। लेकिन जब हम साइन अनसाइंड की बात करते हैं, अनसाइंड का मतलब उसके कोई साइन है ही नहीं, ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुछ। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर सर साइंड बाइनरी गिवन है, जो हमने ये 1 और 0 वाला करा है सर, ये मतलब ये सिग्निफिकेंस इसका मतलब यही है कि ये हर बार ही ऐसा होगा। हर बार ऐसा होगा कि अगर तो नंबर साइंड बाइनरी में गिवन है या कोई साइंड डेसिमल में गिवन है, तो साइन जो फर्स्ट बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट, वो सिर्फ रिजर्व किसके लिए, टू इंडिकेट कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस। ओके उसका सर, बाइनरी से कोई लिंक नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। Right? Now let's go back to the PPT. All signed or unsigned binary numbers are basically a string of bits. Right? It is a user who determines whether the number is signed or unsigned. तो आपको जो भी आप लिखोगे, आप बताओगे कि ये नंबर तो 1010 की फॉर्म में ही है ना, लेकिन क्या ये नंबर साइंड है या अनसाइंड है? अगर साइंड होगा तो उसकी वेटेज लगेगी। लेट्स टेक एग्जांपल अगेन। सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास कोई 4 बिट नंबर है, लेट्स से 3 बिट नंबर। अब मैं पूछूंगा 3 बिट नंबर है, तो मुझे बताओ उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 to 7. 0 to 7, 7. right? But if I say 3 bit signed number, तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी बताओ मुझे।
कितने नंबर कितने होंगे उसके अंदर? ओके, लेट मी राइट डाउन। सर ये आपकी उसमें हेल्प 4 नंबर होने चाहिए हाँ, सर, क्योंकि मैं- एक डिजिट तो उसका साइंड होगा ना। बिल्कुल सही बात। अब देखो जरा, ये मैंने आपके सामने सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दी है ना। सो फर्स्ट 4 केसेस indicates what? Which numbers? Can you tell me the value? 1 सर ये तो अनसाइंड। पॉजिटिव 0, ये 2 3 कितना है? ये 1 सर ये तो 1, 2 ये 3 3, Now talk about these 4 numbers. सर 8 गलत। तो ये तो अगर 0 साइंड बाइनरी नंबर है ये, रहेगा, अच्छा हाँ, 0 रहेगा ना ये तो। we will write -0. माइनस हाँ जी, -0। यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर 0 की 2 रिप्रेजेंटेशन होगी, एक +0 एक -0। ऊपर वाला +0 था, ये -0। आप कहोगे सर 0 का कुछ भी लोग फर्क नहीं पड़ेगा। आई एग्री विद दैट, बट रिप्रेजेंटेशन जो बता रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जो अगर 1 आपका एमएसबी जो से 1 है, इट इंडिकेट्स नेगेटिव साइन। इट इज नथिंग टू डू विद कि आगे 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, मुझे कुछ नहीं मतलब। मुझे इससे मतलब है कि साइन की वैल्यू क्या थी। Likewise, if I go ahead, it will -1, -2, -3. -3 ओके सर। So it means now, if I am using 3-bit sign numbers, I am having a range from where to where? -3, -2, -1, -0, +0, 1, 2, 3, है ना। नंबर तो 8 ही है, लेकिन साइन के साथ आ गया ना हमारे पास। उसमें क्या था? 0 to +7 और 0 to 7, not +7. Am I clear? यस सर। लाइकवाइज, तो कहने का मतलब क्या होगा, जब हम साइंड यूज कर रहे हैं तो जो टोटल n नंबर ऑफ बिट्स हैं, अगर मैं कहता हूं कि 0 to 2n-1 तक होता है हमारे पास, सॉरी 0 to 2n-1, ऐसा होता है ना कि अगर 3 बिट्स हैं तो कहते हैं 0 to 2n-3-1 फॉर अनसाइंड नंबर्स 0 to 7, राइट। बट फॉर दिस केस क्या होगा, लेट्स डिस्कस इन द पीपीटी। तो यहाँ पर जो क्या है, if the binary number is signed, then the leftmost bit is signed bit and the rest of the bits represent the number. So if the binary number is an unsigned number, then the leftmost bit is the most significant bit of the number. Now let's see this example. 0 1 1 0 0 1. It can be considered as 9, which is unsigned binary, or +9 as signed binary. ये plus क्यों है? क्योंकि MSB 0 था। यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? अनसाइंड बाइनरी है। सर तो फिर हमें कब उसे साइंड मानना और कब उसको अनसाइंड मानना है? अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दिस नंबर इज अ साइंड बाइनरी, तो आपने साइंड Okay. मानना है उसको। अगर लिखा हुआ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो अनसाइंड है, ओके फिर ठीक है। राइट। तो अब यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग 11001 रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट ऑफ 25 when we consider unsigned numbers, but if we consider signed number, then this is equal to what? -9. देख रहे हो? तो अगर मैं वही नंबर है, वही डिजिट है, 5 डिजिट सेम डिजिट है, एक तरफ 25 दिखा रहा है, एक तरफ -9 दिखा रहा है। It means if I am not mentioning that whether it is a signed number or it is an unsigned number, then its value is 25. But whenever I am mentioning that this number is a signed binary number, its values is minus. Clear हो गया? -9 हाँ? Is it clear? yes sir Okay. So if type of representation is known in advance, then there is no confusion. And we should know that when we are dealing with the addition subtraction, we should know that is it a signed or it is an unsigned number. Only then we can do it. Right. Now, regarding the signed number representation, the representation of signed numbers. So पहले क्या है? Signed magnitude convention. Notation as one sign bit and rest magnitude bits. So for ease of arithmetic operations, it is more convenient to use signed complement system for negative numbers. जैसे अभी हम निकाल रहे थे ना कि we are taking the 2's complement of
ऑफ द सबट्रेंड, है ना। तो ये अगर हमारे पास साइंड होता तो पहले हमें क्लियर हो जाता। अब देखो साइंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे होता है, इट्स फॉर्मेट इज आइदर वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, राइट। अब साइन बिट मैग्नीट्यूड कन्वेंशन कैसी होती है, जस्ट लुक इनटू दिस। इफ in this basically sign bit magnitude convention, the representation of positive and negative decimal number is done by using MSB as the sign bit, with the 0 as plus sign, 1 as the minus sign जो भी डिस्कस किया हमने, and remaining bit represent the magnitude. In 8-bit representation, MSB represents the sign and the remaining 7 bits represent the magnitude. So अगर आपका 8 bits है, इसका मतलब आपके अगर अनसाइड होता तो क्या होता, 0 to 2 raised to power 8 minus 1. So 0 to 250 नंबर होते हैं आपके पास, है ना, टोटल 256. लेकिन क्योंकि ये साइड अगर हो गया तो नंबर कहां से कहां तक होंगे, इट विल बी फ्रॉम, बताओ 7 बिट रहेगी ना, तो 2 raised to power 7 कितना हो गया, 128. So Yes, it's from sir. minus 127 to plus 128 हो जाता, right. Now let's try to do this question कि suppose we want to write plus 53. अब हमने क्या किया है, अब इसमें हम एक चीज आ जाते हैं, जब कहते हैं ना कि साइन बिट मैग्नीट्यूड कन्वेंशन, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बिट्स पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, we have used 8 bits, right. तो अब प्लस 53 हमने निकाले पहले 110101, then minus 53 is what, 8th bit is 1, rest all is same magnitude. So पहले का magnitude क्या है, plus 53, दूसरे का क्या है, minus 53. Using here 8-bit representation, it's written as 8-bit representation. So whenever we are doing the subtraction or notation, they always refer to as कि कितने bit की notation है. So we generally take 8-bit representation. इसका मतलब क्या है कि suppose हमने लिखा था 53. So 53 का हमने क्या निकाला यहाँ पर देखो, 110101, 110101. So यही तो कितने बिट्स हो गए, 6 हो गया, तो we will append 2 zeros. अब ये 0 जो से आगे, it indicates कि नंबर पॉजिटिव में। अब इसी को अगर नेगेटिव में लिखना 53, तो क्या करोगे, 8 बिट में इसको 1 कर दोगे, बाकी एज इट इज। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ आपके लिए, रेंज ऑफ n बिट साइंड बिट रिप्रेजेंटेशन इज फ्रॉम minus 2 to the power n minus 1 plus, let me write down here, minus 2 raised to the power n minus 1 2 plus 2 raised to the power n minus 1. जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, किसका लिया था, इसी का लिया था, ये दिस वन, कि ये पहले आपका 0 to 7 था, है ना, अब ये हो गया। तो सेम चीज यहां अप्लाई करो कि अगर आपके पास मान लो n3 है, सॉरी n4 ले लो, तो कितना आ जाएगा रेंज, minus 2 raised to the power 3 minus 1 2 minus 2 raised to the power 3 plus 1. Likewise, if you take n is equal to 3, तो minus 2 raised to the power 2 minus 1 2 minus 2 to the power 2 plus 1, sorry minus 1. तो ये कितना आ जाएगा नंबर बताओ, फ्रॉम -3 to 2 plus 3, वही आया था हमारे पहले भी, देखो -3 to +3. तो ये जो आपको फॉर्मूला बताया मैंने, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि फॉर एनी n बिट नंबर, इफ इट इज इन बाइनरी, द साइन जो आपकी रेंज है नंबर की, कहाँ होगी, फ्रॉम -2 raised to n minus 1 -1 2 plus 2 raised to n minus 1. क्लियर ये पॉइंट? सर एक बार पीपीटी दिखा देना। हाँ ये लो, सर 1 सेकंड। क्लियर है ये? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो अभी आपके पास ये 8 बिट में क्या होगा, -127 to +127 होगा।
So there are two representations for 0. देखा है ना, -0 + 0 आया था. Yeah. हाँ जी. कुछ नहीं सर. So now let's talk about the ones complement format कैसा होता है for signed binary numbers. So in the ones complement format, the positive numbers remains unchanged. That is, the bits of these numbers will have natural binary weightage with a leading 0. क्योंकि binary जब positive number है तो उसका मतलब तो MSB 0 है, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है. फर्क कहाँ पर आता है? सिर्फ जहाँ नेगेटिव नंबर आता है हमारे पास, right? So the negative numbers are obtained by taking the ones complement of the positive counterparts. Let's take the example. Suppose we want to represent +9 in 8-bit notation. तो क्या करोगे? पहले 9 का बाइनरी लिखा, उसको 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया, पेंडिंग द 4 zeros. कर दिया था ना. ये ध्यान रखना कि जब हम ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर गिवन है कि ये 8 बिट नोटेशन में कर रहे हैं हम, ये 16 बिट में कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली आपने काम करना है, ये नहीं कि आप 6 बिट से लेकर चलोगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया? वी हैव टेकन +9, तो 9 हमारे पास होता है 1001. उसके आगे हमने 4 0 पेंड कर दिए, क्योंकि ये हमारा 8 बिट नोटेशन था. अगर मुझे -9 लिखना तो क्या करूंगा? इन 8 बिट नोटेशन आई विल पुट दिस MSB as 1, देन रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -9, यहाँ पे लिखा हुआ है 1111 which is ones complement of this. तो क्या किया इसने? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया. बट देखो यहाँ पे जैसे, लेट मी टेक अ पेज. हमने लिया +9. +10 को कैसे लिखा हमने? 1001 and we have appended 4 zeros. Right? Now we want to represent -9. तो हमने क्या किया? -9 का मतलब क्या है? We have to take the complement of this number, so we have to take the complement. तो यहां पर क्या आया? This is your 9's complement of, oh sorry, 1's complement of my answer. तो अगर मैं n bit notation यूज करता हूं, the range जो मैंने बात करी है, this is a range using 1's complement format. ये ध्यान रखो कि हमने जो लिया है, we have taken a 8 bit notation. So 8 bit representation of 1's complement format can represent the decimal numbers from -127 to +127. And there are two representations for the zeros. The same thing if I want to do with the 2's complement format, तो कैसे होगा? MSB represents the single bit, 0 for a plus sign and 1 for a minus sign. Remaining bits represents the magnitude. So the positive numbers are represented the same way. उसमें कोई issue नहीं है साइन में, वर्स में किया हमने. और नेगेटिव नंबर्स क्या कर रहे हैं? देखो, are represented by the 2's complement of their positive counterparts. Positive counterpart का मतलब क्या है कि 12 में नंबर लिखा -9, तो -9 का पॉजिटिव काउंटरपार्ट क्या है? +9, है ना? तो +9 कैसे लिखा मैंने? विद 4 zeros 1001. अब जो ये आंसर आया, इसका मैंने क्या लिया? 2's complement लिया. तो अगर 2's complement लेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, ये जो हमने लिया था यहाँ पर, this one was the 1's complement, इसका 1 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 0 1 1 1 1. So 4 1 0 1 1 1. यहाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है 4 1 0 1 1 1. Right? So that if the 2's complement of the magnitude of +9 gives a magnitude of -9, then the reverse process will also be true. That is that is the 2's complement of the magnitude -9 will give the +9. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर का आप 2's complement लेते हो, कुछ नंबर मिलता है आपको, उस नंबर का फिर से 2's complement लोगे तो क्या मिलेगा? The same number. Or I will say in other words, if a number is complemented once and if I again complement the same number, it gives me the original number. Or a number is complemented twice, it results in the same answer. Clear हुआ ये point? Yes sir. So the n-bit notation of the 2's complement format can be used to represent all the decimal numbers in the range from -128 to +127. ठीक है? I think time हो गया आपका.
टाइप तो हो गया यार। यस सर हो यस गया सर। सर। आपने बताया नहीं टाइम हो गया, 7 मिनट्स ऊपर हो गया। सर हम अच्छे बच्चे हैं, बताते नहीं। लाइन अच्छी बात है, बच्चे अच्छे होने चाहिए।